वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी सर, ओके। ओके क्लास, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? हम लोग अब नहीं लाते यार सारे मुझे। जी कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड, कोई चीज़ क्लियर ना हो या एनी अदर थिंग? ओके, नो क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग। मैंने आपसे कहा था, टोल्ड यू कि मैं कुछ इसमें आई विल इंक्लूड सम न्यूमेरिकल टाइप और ग्राफ टाइप प्रॉब्लम्स। तो दैट इज द फर्स्ट लेक्चर अबाउट द लीनियर प्रोग्रामिंग। लेट्स डिफाइन द लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। नो, दिस इज द कोर्स आउटलाइन। इसमें वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग, रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ये सारी अब डिस्कस करेंगे इन टूडेज लेक्चर। देन फॉर्मुलेटिंग द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जांपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। देन देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच कैन बी यूज्ड इन लीनियर प्रोग्रामिंग। Graphical solution, I think most probably in the 2 to 3 lectures we will use those graphical solutions. Okay, let's define the linear programming. What is the linear programming? Have you learned about linear programming in any subject like production operation management or operation management का कोई subject पढ़ा हो? No sir, अभी तक नहीं पढ़ा। Okay, linear programming basically is a mathematical technique to allocate limited resources to achieve an objective. Basically, it's a mathematical technique. इससे पहले कुछ अर्से तक तो वी यूज द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैनुअल तरीके से वी सॉल्व इट, लेकिन अभी जो है हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू द लीनियर प्रोग्रामिंग। तो अभी हम इसका बेसिक ज़ायरा प्रोसेस देखेंगे। इसमें बेसिक इसमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग है दैट इज द टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्ट टू द लीनियर इक्वालिटी एंड लीनियर इनइक्वालिटी कांस्टेंट्स। इसमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है बेसिकली। Now, we earlier discussed in the previous lecture that basic the objective of any organization, that is the profit maximization or cost minimization. तो इन ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इन देयर इज organization, in any organization, if there are the different sort of products which are being produced, then it guides us how much products of the different in the different ratio should be produced, so our profit can be maximized. Now in every organization there are the limited resources.
So it helps us to produce the thing within the limited resources. Like we cannot work for the 24 hours. All the machineries cannot work for the 24 hours. There are some limitations. So we'll have to work out these objective functions within those limitations. उन limitations के अंदर हमने रह के तो अपने objective function को maximize करना होता है. So basically linear programming is a technique for optimization of a linear objective function. और इसकी जो constraints होती है उसको अभी हम further discuss करते हैं. Linear programming determines the way to achieve the best outcome, such as maximum profit or minimum. Basically, there are the two objectives. Either we are interested in the maximization of the profit, or we are interested in the minimization of cost. In a given mathematical problem, we will have to convert that statements in the mathematical form, and given some list of requirements represented as the linear equations. Linear equations बनाते हैं उसकी with respect to the different methods which are available in linear programming. We solve those equations in order to maximize the profit or minimize the cost. It is one of the most powerful techniques for the managerial decisions. It helps in the different managerial decisions. A linear programming model seeks to maximize or minimize a linear function subject to a set of linear constraints. The linear model consists of the following components: a set of decision variables. We'll have to, अभी हम example करेंगे, we will have to decide about the different variables from the different situations. Then second step may will have to define the objective function, that what is our objective function. There are the two commonly stated objective functions, as I told you earlier, that is the profit maximization or the cost minimization. Then there are the different sort of constraints. Machines के भी constraints होते हैं, human beings के भी constraints होते हैं. Within those constraints we'll have to work. So in the basic linear programming problems, we'll have to decide about the variables, then the objective function, and then the different constraints for that particular problem. We'll find the minimum or the maximum value of the objective function, guarantee the optimal solution to the model formulated. So basically the purpose of linear programming is to find out the optimal. Optimal means there will be no any other option which will be feasible for the organization for maximizing the profit or minimizing the cost. So basically it helps us to find out the best or the optimal solution. Linear programming applications, scheduling the different things, we can schedule the different things, allocating the different units, scheduling tellers at the banks. Wherever the cost is involved, we can minimize the cost. Selecting the product mix, that is the most important. Whenever you are working in a factory, in a machine, in an organization, we can decide about or select the different product mix which can give the maximum profit to the organization within the given constraints. We will discuss the examples, we will solve it, then all of these things will be clear. Picking blends of the raw material and feed mills to produce finished feed combinations at the minimum cost. Then determining the distribution system. Again, the purpose is to minimizing the shipping cost. Production schedule, we can decide about the production schedule so that we can minimize the total production and inventory cost. So these are basically the examples of linear programming applications. Now, before starting the numericals, I am repeating again the requirements. Whenever you are going to solve the different linear programming problems, you will have to go through these steps. There should be an objective function. First of all, we will have to decide about the objective function. Again, there are the two objective functions. Either we can be interested in order to maximize the profit, or we can be interested to minimize the cost. That is the basic objective function. So we'll have to define these objective function in the form of equation. Then the restrictions or the constraints are present which limit the ability to achieve objectives. Then again, we'll have to convert those restrictions and constraints in the form of equations, inequality or equations. There must be alternative course of action from which to choose. There can be the different sort of alternative course of action. We'll have to identify all of these alternative courses of action, and then the objective and constraints in the linear programming must be expressible in terms of linear equations or inequalities. तो ये जो हम express करते हैं different objectives को और constraints को, that will be presented in the form of the linear equations. Now again these steps दोबारा हम repeat कर रहे हैं इसमें. Step 1, study the given situation. Now इसमें basically we'll have to analyze the situation available, find the key decisions to be made, identify the decision variables of the problem, then formulate the objective function to be optimized. You'll have to formulate the objective function.
फॉर्मुलेट द कॉन्स्टेंट्स, अगेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम बनाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टेंट्स के फंक्शन बनाएंगे, एड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्टेंट्स। ये नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस और कॉन्स्टेंट्स को अगर एग्जांपल में आएगा तो मैं फर्दर करूंगा। दीज आर आल्सो द अदर टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं तो दैट कैन बी नॉन नेगेटिव, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में ही हम लेंगे। The objective functions, the set of constraints and the non-negativity restrictions together form the linear programming model. So these are the basic sets which are used in linear programming model. Now अभी हम एग्जाम्पल जी सर नॉन नेगेटिव की क्या सर, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन? नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। तो ये जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड हैं, जो क्वांटिटी होती है, दैट कैन नॉट बी इन द नेगेटिव, क्योंकि हम इसको मैथमेटिकल सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो उसमें नेगेटिव टर्म्स भी आ सकती हैं, बट दैट विल बी द नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स, कि वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, क्योंकि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दैट कैन नॉट बी द इन द नेगेटिव टर्म्स, वो नेगेटिव टर्म में नहीं हो सकती। तो उस वजह से उसको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ये अक्सर प्रॉब्लम से यूज ही नहीं होंगे, लेकिन अगर इस किस्म का कोई कॉन्स्टेंट आएगा तो उसमें मैं आपको प्रॉब्लम जब करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा व्हाट आर द नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। ओके, ये जो सारे स्टेप्स मैंने क्विकली थोड़ा सा रिव्यू किए हैं। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए थ्रू, और इससे आपको सारे स्टेप्स मैं वन बाय वन बताता हूँ जो भी हमने डिस्कस किए हैं। The product mix problem at Shader Electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई कंपनी है, they want to have the product mix, देखना चाह रहे हैं कि क्या कितने प्रोडक्ट बनाने चाहिए उन्हें। दो किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंपलेस्ट एग्जांपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। The other two products is Shader Export, a portable music player है, और एक Shader Blueberry, an internet connected color telephone है। यानी दो प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं। Determine the mix of the products that will produce the maximum profit. यानी अब हमने बेसिकली इस प्रॉब्लम में बताना है कि हम कितना प्रोडक्ट्स बनाएं। अब ये देखें, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया, देयर आर द डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। मतलब हम ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो अनलिमिटेड क्वांटिटी में बनाना शुरू कर देंगे। उसके कोई कॉन्स्टेंट्स हैं, ह्यूमन के कॉन्स्टेंट्स भी हैं, मशीनरी के कॉन्स्टेंट्स भी हैं। जो मशीन्स हैं वो भी 24 घंटे बाद दफा काम नहीं कर सकती, कोई ना कोई कॉन्स्टेंट्स होते हैं इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। सो विद इन डॉट कॉन्स्टेंट्स वी विल हैव टू डिफाइन द प्रोडक्ट मिक्स, कि हम कितने कितने प्रोडक्ट बनाएं कि आपका प्रोडक्ट जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ दिस टेबल। ये आपका क्वेश्चन के साथ ही है टेबल। अब इसमें देखें, दो डिपार्टमेंट हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है और एक असेंबली डिपार्टमेंट है। दो प्रोडक्ट्स हैं, एज आई टोल्ड यू। एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसको हमने X1 से डिनोट कर दिया, और ब्लूबेरी को हमने X2 से डिनोट कर दिया। दीज आर द टू प्रोडक्ट्स। नाउ आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, यानी अगर एक्सपोर्ट का आप 1 यूनिट बनाते हैं तो उसको 4, इट रिक्वायर्स 4 आवर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क्स एंड इट विल रिक्वायर 2 आवर्स फॉर असेंबली वर्क, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक 1 यूनिट ऑफ दिस ब्लूबेरी इसी डिपार्टमेंट में, तो उसको 3 आवर्स चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वर्क के लिए और 1 आवर चाहिए उसे असेंबली वर्क के लिए। अवेलेबल आवर्स जो हैं दिस वीक, पूरे वीक में जो इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल आवर्स हैं, दैट इज 240, यानी 240 से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं कर सकते। दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। मैंने आपको बताया कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर द डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स। इसी तरीके से असेंबली वर्क जो है, उसकी लिमिट जो है, जो मैक्सिमम आवर्स वो काम कर सकते हैं दिस वीक, होल वीक की, दैट इज 100 आवर्स। 100 आवर्स से ज्यादा वो काम नहीं कर सकते, असेंबली का काम नहीं कर सकते। नाउ इसमें जो अगर हम X1 इफ यू प्रोड्यूस द 1 यूनिट ऑफ X1, तो हमें जो प्रॉफिट होता है पर यूनिट, दैट इज $7, ठीक है, $7 का प्रॉफिट होगा। अगर हम X2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो ब्लूबेरी है, तो उसमें पर यूनिट जो प्रॉफिट है, दैट विल बी $5, ये इसका पर यूनिट प्रॉफिट है। नाउ अब हमने इसमें कॉम्बिनेशन बताना है विद इन दिस इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसकी बेस पे हमने बताना है कि कितने प्रोडक्ट्स हम बनाएं एक्सपोर्ट्स के और कितने प्रोडक्ट बनाएं ब्लूबेरी के, कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। नाउ अब इसमें जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, दैट इज X1, ये X1 हमने खुद डिनोट कर दिया कि लेट्स हम सपोज करते हैं वी आर प्रोड्यूसिंग द नंबर ऑफ जो एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट्स हैं वो X1 है, और जो ब्लूबेरी के हम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट विल बी X2 प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमने सपोज कर लिया। हमने ये X1 और X2 की वैल्यू एक्चुअली निकालनी है कि कितने प्रोडक्ट्स हम बनाएं एक्सपोर्ट्स और कितने प्रोडक्ट्स बनाएं ब्लूबेरी के, कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए।
अगर ये एग्जांपल आपको क्लियर होगी, इसमें तो कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लें। सर ये एक चीज बताना, सर Sorry? प्रॉफिट तो मतलब पर यूनिट तो प्रॉफिट उन्होंने दिया हुआ है ना, सॉरी, मैक्सिमाइज करने का मतलब है सर। दोबारा जरा आवाज आ बताएं। रही है? जी आप बताएं। सर मैं समझ गया उनका क्वेश्चन क्या है। सर जी ये बताएं। असल में पूछना चाह रहे हैं कि मतलब कि हमने प्रॉफिट तो हमारे पास है, ठीक है, पहले ही हमें पता है कि एक्सपोर्ट पे $7 हमारे पास प्रॉफिट आता है, ब्लूबेरीज पे $5 प्रॉफिट आता है, तो जी हम जी इसकी जो है प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करेंगे? इसका आंसर सर मेरे ख्याल ये बन सकता है कि हमने असल में उनकी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं करना, हमने देखना है कि इन अवेलेबल आवर्स में हम इनकी रेशो किस तरह रखें कि एट द एंड ऑफ द डे इन अवेलेबल आवर्स में हमने जो प्रोडक्शन करनी है उसका जो टोटल जो है ना इनकी रेशो से मैक्सिमम हमारे पास कॉस्ट आए। फॉर एग्जांपल अगर हम अकेले ब्लूबेरीज बनाएंगे तब हमारे पास कोई और मतलब कि हेलो हमारे पास टोटल प्रॉफिट हेलो आएगा, सर अगर हम एक्सपोर्ट बनाएंगे हमारे पास जी, कोई और प्रॉफिट आएगा। मैं हमने इनका क्लास ले रहा हूँ, मिक्सचर मैं इस हिसाब से 15-20 मिनट बनाना है तक फारिग होकर करता हूँ। कि जो है ना इनका मिक्सचर जो मैक्सिमाइज हमारे पास प्रॉफिट लेके आए। आई थिंक हाँ जी ये जी जी, अनीक आपने ठीक बताया कि ये तो पर यूनिट प्रॉफिट है ना, कि अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन हमने इसका मिक्सचर बनाना है प्रोडक्ट्स का, X1 कितने प्रोड्यूस करें, X2 कितने प्रोड्यूस करें, कि ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम हो जाए। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स, हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, हम अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे पास इतनी मेन पावर नहीं होती, हम मशीनरी को 24 घंटे नहीं, तो लिमिट होती है ना, विद इन लिमिट हमने काम करना है। तो वो लिमिट्स हमें बताई हुई हैं, उन लिमिट्स में हमने कितने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए X1 के और कितने प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए X2 के, कि आपका ओवरऑल प्रोडक्ट ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो जाए। ये जो प्रॉफिट दिया हुआ दैट इज पर यूनिट प्रॉफिट, यानी एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो इतना उस पे इतना प्रॉफिट होगा। जी, इज इट क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके, लेट्स मूव टू फर्दर। अब इसकी हम उस पे सॉल्यूशन की तरफ आएंगे, ये प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। अब इसमें देखें, इस किस्म के जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें सबसे पहला काम ये है कि अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना, वो हमने डिफाइन कर दिया, X1 X2 कितने प्रोडक्ट्स हैं वो हमने उसको सपोज कर लिया कि हम जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज X1 एंड X2। उसके बाद जो मेजर काम इसमें होता है, आपने प्रॉफिट का इक्वेशन बनानी है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, वैसे तो ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, और ये बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे 2 या 3 लेक्चर्स में, तो जाहिर है बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे, हम बेसिक सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में आपको दूंगा। अगर फर्दर आप लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो भी टीचर होंगे आपको फिर डिटेल में भी करवाएंगे, यू कैन आल्सो यूज द डिफरेंट सॉफ्टवेयर टू सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब इसमें देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा जो इसमें बन रहा है, इसको बेसिकली Z से हम डिनोट करते हैं, एक जनरल परसेप्शन है डिफरेंट बुक्स में, या Z से कर दें, या मैक्सिमम प्रॉफिट्स में लिखा हुआ है। तो ये जो इक्वेशन होगी 7x1 प्लस 5x2 किसी कैसे होगी, हमने लास्ट में इसमें डिस्कस किया स्लाइड में, कि एक प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट है वो 7 है। अगर हम X1 प्रोड्यूस करेंगे इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7x1, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट जो हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका 5 है। अगर हम टोटल X2 दूसरा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो वो 5x2 हो जाएगा, और टोटल प्रॉफिट जो हो जाएगा दोनों का मिलकर दैट विल बी 7x1 plus 5x2। Now this is the profit equation। ये प्रॉफिट इक्वेशन कैसा बने ये भी क्लियर है, आई थिंक इट विल बी क्लियर। यस सर। ओके, नाउ सबसे पहला इन प्रॉब्लम में सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, देन यू विल हैव टू डिफाइन द कांस्टेंट्स। उसके बाद आपने जो है कांस्टेंट्स को डिफाइन करना है। अब कांस्टेंट्स जो होते हैं 3 फॉर्म्स में हो सकते हैं, या तो वो लेस देन इक्वल टू की लिमिट की फॉर्म में होंगे, या वो ग्रेटर देन इक्वल टू इनइक्वालिटीज जिनको हम कहते हैं उस फॉर्म में होंगे, या इक्वल टू की फॉर्म में होंगे, ठीक है। लेस देन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इक्वल टू की फॉर्म में भी हो सकते हैं, इक्वल। इसमें आपने जब जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, सिचुएशन दी होगी, उसमें यू विल हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इक्वालिटीज यू विल हैव टू यूज। ये मैं भी आपको बताता हूं। लेट्स ये देखें फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स। जी जी श्रीराम, कोई क्वेश्चन आपका? सर आवाज आ रही है? नहीं, अभी कट रही थी, अभी आनी शुरू हुई है, दोबारा बताएं। सर ये अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स का क्या मतलब है? जी ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये अभी कॉन्स्टेंट में क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट्स का मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखें कि फर्स्ट कॉन्स्टेंट्स जिस हमने इस एग्जांपल में ये डिस्कस किया कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, टोटल जो अवेलेबल आवर्स हैं वो 240 आवर्स अवेलेबल हैं, इससे ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब इसमें
जो अगर हम X1 का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें 4 आवर्स लगते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और अगर हम इसका X2 का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें एक प्रोडक्ट पे 3 आवर्स लगते हैं। अगर हम X1 और X2 बनाएंगे तो उसके टोटल क्या हो जाएंगे 4X1 + 3X2, और ये लेस देन और इक्वल टू 240 होना चाहिए, क्योंकि हम ग्रेटर देन 240 से ज्यादा काम कर ही नहीं सकते। तो दैट इज वन ऑफ द कांस्टेंट। ये मतलब है इसका लिमिट का जो मैं इसमें डिस्कस हो रहा था ना, लेस देन इक्वल टू अपर लिमिट, यानी दिस इज द अपर लिमिट 240 जो है दैट इज द अपर लिमिट। 240 से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। तो इसको सामने रख के हमारा जो हमारी इक्वेशन होगी दैट विल बी 4X1 + 3X2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 240। ये दैट इज द लिमिटेशन ऑफ आवर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइम। जी ये आपको क्लियर हुई इक्वेशन? जी सर, ये समझ आ गया। ये क्लियर होगी। दूसरा जो कांस्टेंट था हमारा दैट वाज असेंबली का कांस्टेंट था कि टोटल जो असेंबली आवर्स में काम होना है उस प्रोडक्ट में, उसमें 2 आवर्स लगते हैं आपके X1 के और 1 आवर लगता है X2 के। अगर हम X1 और X2 टोटल प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 2X1 + 1X2 लेस देन इक्वल टू 100। ये इसका हमारे पास सेकंड कांस्टेंट आ गया। 2X1 + 1X2 इज लेस देन इक्वल टू 100 आवर्स ऑफ असेंबली टाइम। तो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। उन्हीं कॉन्स्टेंट्स को जो आपको डिफाइन किया हुआ था क्वेश्चन में, उसको हमने इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लिया, इनइक्वालिटी की फॉर्म में चेंज कर लिया। एक मिनट जरा होल्ड कर रहे हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ बस मैं क्लास ले रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है ठीक। और किसकी डेथ हुई है? वाइफ की हुई है, वो तो पता है। किसकी? वो भी इसी से। चलिए आप मुझे मेल करें, मैं फिर फॉरवर्ड कर देता हूँ सब। चलो ठीक। सर किसकी डेथ हुई है? बस यार कुछ ना कुछ खबरें रोजाना की आ रही हैं, 2-2 3-3 डेथ्स हो रही हैं। आप लोग भी केयर करें, घर वालों की केयर करें सब लोग, और दुआ किया करें सबको, अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको निजात दिलाए। आमीन। अभी प्यास में हुई है सर ये? जी प्यास में किसी के फादर की, किसी के कोई ना कोई डेथ्स हो रही है डेली की। केसेस भी ज्यादा हो रहे हैं, और अल्लाह ताला रहम करे, बस अल्लाह ताला इतनी करे और सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। ये दोनों ही कॉन्स्टेंट्स की इक्वेशन क्लियर होगी आपको? यस सर। तो ये हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट बन गए। ये इस किस्म के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बेसिक, इसमें जो काम होता है कि आपने इक्वेशन बनानी होती है। तो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं इसका टेबल की फॉर्म में भी हो सकते हैं और स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। अगर स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे यू विल हैव टू डिफाइन दीज इक्वेशंस। ये 2 इक्वेशंस आपकी बन गई, इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। नाउ इसमें 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग, देयर आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स भी होते हैं। एक मिनट होल्ड करें। So I was discussing there are the different methods available for the linear programming। ठीक है, एक जो सबसे इजी मेथड वो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है, फिर एक सिंपलेक्स मेथड होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर वी कैन बी यूज, बट अभी हम क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड बताता हूँ कि हाउ वी कैन फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। Now it can be used when there are the 2 decision variables, plot the constant equations at their limits by converting each equation to an inequality। हमने convert कर लिया जो inequality थी। Identify the feasible solution space। जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं, अभी मैं बताता हूँ कि किसी कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं, तो we'll have to first identify the feasible solution space।
देन क्रिएट एन आइसो प्रॉफिट लाइन बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। प्रॉफिट लाइन होगा, हम वो ड्रा करेंगे ग्राफ पे, ये भी हम डिस्कस करते हैं। मूव दिस लाइन टुवर्ड्स अंटिल द ऑप्टिमम पॉइंट इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है, मेथड्स ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है, एक कांस्टेंट की इक्वेशन हो गई, दूसरी कांस्टेंट की इक्वेशन ही होगी। इसको सॉल्व करने का मतलब ये होता है, मेथड ये होता है कि सबसे पहले जी सर ये जो हमारे पास कांस्टेंट की इक्वेशन, जी इसमें तो लेस देन और इक्वल टू वाला था जी, वो मैं समझाता हूँ। उसको रिलेशन। अभी हमने जी इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने सिर्फ इसको इक्वल टू में चेंज किया, वो लेस देन इक्वल टू को हम ग्राफ में इसमें इंक्लूड करेंगे। सही है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सपोज हम x2 0 कर दें। x2 का मतलब हम x2 का कोई प्रोडक्ट भी ना बनाएं, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 जब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। ठीक है, और एक हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 60 0, यानी x और y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 60 0। इसी तरह ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x1 को 0 पुट करें तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 80, इसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो एक पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 और 80। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए, एक आ गया 60 0 और एक आ गया 0 80 एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक। ये फर्स्ट इक्वेशन की ये क्लियर हुई है कि नहीं, मैं दोबारा समझा दूं। जी सर ये क्लियर है। ये एक मेथड सेकंड है, में भी हमने ऐसे ही कर लिया। जी सेकंड में भी हमने इसी तरीके से कर लिया। x2 को हमने सपोज किया कि 0, x1 की वैल्यू निकाली, एक पॉइंट आपके पास आ गया 50 0, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए। उसके बाद x1 को 0 कर दिया, x2 आपके पास 100 आ गया। ये आपके पास दो पॉइंट्स आ गए दोनों के। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको ड्रा करना है हमने ग्राफ में। नाउ दिस इज द ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ तो टोटल बना हुआ है, इसकी वीडियो जो थी उसमें मैंने साथ साथ मेरे ख्याल बताया होगा, बहरहाल इसमें मैं बता देता हूँ। नाउ दिस इज द ग्राफ। इसमें जो नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स थे, या x1 है उसको हमने x एक्सिस पे लिया हुआ है, नंबर ऑफ जो ब्लूबेरी थे x2 उसको हमने y एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले वो जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं इनको ड्रा करना है, यानी कि एक पॉइंट जो है आपका 60 0 और 0 80 है। तो ये देखें, ये वाला पॉइंट जो है दिस इज 60 0, ये इक्वेशन पे इसको 1 इक्वेशन से शो कर दें तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स होती हैं तो उसमें आपको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये ग्राफ में आप देख रहे हैं ना, 1 जो है यानी फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट है ये 60 0 और दूसरा पॉइंट है 0 80, ये आपका 0 80 पॉइंट है जिसमें x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 80 है। इसको हमने लाइन की फॉर्म में मिला दिया, एक लाइन बन गई आपकी। इज इट क्लियर? यस यस सर। ये क्लियर होगी। आपकी इनइक्वालिटी की जो बात कर रहे थे ना, अगर हम इस सिर्फ एक लाइन को देखें तो हमने इससे लेस वाला एरिया, अगर एक इक्वेशन को देखें तो इस लाइन से नीचे वाला हमारा फिजिबल एरिया होगा। अगर हम खाली एक इक्वेशन को देखें, इनइक्वालिटी का मतलब है लेस देन होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं हम जा सकते। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो हमारे कांस्टेंट से बाहर हो जाएंगे। सिमिलरली अब हम दूसरा जो हमने पॉइंट निकाला था ये 50 0 0 100, इसको भी ड्रा कर देंगे। ये दूसरी इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन इसमें शो हुई है। ये पॉइंट है 0 100, यानी x0 है, y 100, और इसमें हमारा दूसरा पॉइंट है आई थिंक दैट इज 50 0। ये 2 इक्वेशन से शो हुआ है, तो ये दूसरी लाइन को भी इसमें हमने ड्रा कर दिया। ये भी क्लियर हो गया। अब इसका जो फिजिबल रीजन है वो इससे कम एरिया होगा, दोनों लाइनों का जो लेस देन एरिया होगा, यानी नीचे नीचे जो एरिया होगा, और जी सर समझ आ गई। फिजिबल रीजन, दोनों इक्वेशन का फिजिबल रीजन होगा। ये भी क्लियर हो गया। जी सर। अब जी हमने सर। क्योंकि दोनों का देखना है, असेंबली लाइन के कांस्टेंट्स को भी देखना है, और हमने विल हैव टू सी अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स कांस्टेंट्स एज वेल। तो इसका जो फिजिबल एरिया वो वाला एरिया होगा, इसमें हमने सबसे पहले फिजिबल एरिया निकालना है। फिजिबल एरिया वो एरिया होगा जो इन दोनों इक्वेशन से लेस वाला एरिया होगा, तो वो हाईलाइटेड हुआ है फिजिबल एरिया। यानी इसमें ये जो हाईलाइटेड हुआ ना एरिया, ये आपका फिजिबल एरिया। इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। अगर ऊपर जाएंगे तो आपके या तो इलेक्ट्रॉनिक कांस्टेंट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे होंगे, या आपके असेंबली के कांस्टेंट्स वायलेट हो रहे होंगे। मतलब हमने इन दोनों का क्रॉस सेक्शन निकाल दिया। क्रॉस सेक्शन जो निकाल दिया, मतलब वो क्रॉस वो सेक्शन, था। हाँ जी, जो वो वाला एरिया निकाला जो इन दोनों से लेस एरिया है। इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन था। इंटरसेक्शन और चीज है वो मैं बताता हूँ। एरिया, अभी हम एरिया की बात कर रहे हैं। ये जो हाईलाइटेड एरिया हुआ है दिस इज द फिजिबल रीजन, इस यानी फिजिबल रीजन। इसका फिजिबल रीजन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी पॉइंट पे ऑपरेट कर सकते हैं। लाइक ये आपको इसका कर्सर नजर आ रहा है स्क्रीन पे? जी सर। अगर मैं इस पॉइंट पे ऑपरेट करता हूं तो ये भी फिजिबल एरिया, इसमें इतने एक्स हो जाएंगे और इतने वाई प्रोडक्ट हो जाएंगे, यानी इस पे हम किसी भी जगह ऑपरेट कर सकते हैं। हमारा पास फिजिबल एरिया, इसके ऊपर नहीं जा सकते हम। नाउ ये तो फिजिबल आ गया, अब हम वो मैक्सिमाइज। जी, अब हमने इसको मैक्सिमाइज करना है, दैट इज कि मैक्सिमम एरिया को जिसमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा।
अच्छा, ये जो थ्योरी है लीनियर प्रोग्रामिंग की, ये बताती है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा हमेशा कॉर्नर्स पे होगा। ऑलवेज जो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा दैट विल बी दी, उसको कहते हैं उसको कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड। इसमें 3 कॉर्नर्स आ रहे हैं जो फिजिबल एरिया में। एक तो आपका 0 है, इसमें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, इसका मतलब है ना हम एक्स प्रोडक्ट बनाएंगे ना एक्स टू पर बनाएंगे, दैट विल बी 0 0, इसको हम इग्नोर कर देंगे। दूसरा पॉइंट जो है ये इसमें शो हो रहा है, इसको ए पॉइंट कर दें या बी, इसमें इक्वेशन में शो नहीं हो रहा, दैट इज वो वाला पॉइंट है जो 50 0 वाला पॉइंट है, क्योंकि ये भी फिजिबल एरिया आ रहा है एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये होगा कि हम 50 x1 बनाएं और y2 कुछ भी ना बनाएं, जो दूसरा प्रोडक्ट है उसको ना बनाएं। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट जो है इसका 080 है y एक्सिस पे, जो फिजिबल एरिया के ऊपर आ रहा है कॉर्नर पॉइंट। तो इसमें इसका मतलब है हम x1 ना बनाएं और हम सारे जो है x2 बनाएं, और वो मैक्सिमम 80 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं x2 के विद इन द गिवन कॉन्स्टेंट्स। ठीक हो गया। थर्ड जो फोर्थ जो फिजिबल एरिया है वो इनका इंटरसेक्शन है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जिसमें ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये वाला पॉइंट हमें अवेलेबल नहीं है, इसका पॉइंट हम निकाल लेंगे खुद, जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन होगा। तो ये 4 पॉइंट्स होंगे जिसपे किसी एक पॉइंट पे आपका जो प्रॉफिट है दैट कैन बी मैक्सिमाइज, जो थ्योरी बताती है लीनियर प्रोग्रामिंग की। इज इट क्लियर? जी सर। ओके, ये हमने 4 पॉइंट निकाल लिए। इज अ प्रॉफिट, इसको कहते हैं आइसो प्रॉफिट लाइन सॉल्यूशन मेथड, यानी वो जो लाइन आ रही थी उसको आइसो प्रॉफिट लाइन कहते हैं, या कॉर्नर पॉइंट मेथड कहते हैं। इसमें ये तो आपकी प्रॉफिट की इक्वेशन थी, सॉल्व फॉर द एग्जिस्टेंस। अच्छा, इसमें हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करना आपको आता है इक्वेशंस का, किसी एक को 0 पुट कर, x1 को एक कोऑर्डिनेट्स एक जैसे करके उसको कैंसिल कर दें, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। सीधा दूसरे को 0 आता है ना सॉल्व, तो आप कर लेंगे इक्वेशंस को। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो x2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 42 और x1 की वैल्यू आ जाएगी 30। ये कौन सा पॉइंट है? ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जिसमें ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये हमने खुद निकालना है। जो हमारे पास बेसिकली दोनों इक्वेशन थी उसका हम इंटरसेक्ट निकाल लेंगे, यानी इन दोनों को हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों एक्सट्रैक्ट कर दें, ताकि x1 कैंसिल हो जाए तो x2 की वैल्यू आ जाएगी। x2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला प्रोडक्ट है, ये 30 और 42 वैल्यूज हैं, यानी ये जो आपका है 30 to 42, ये इंटरसेक्ट वाला पॉइंट होगा ये। अच्छा, ये वैसे एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम इस लाइन पे ऑपरेट करें तो 30 0, ये भी फिजिबल रीजन है, लेकिन ये प्रॉफिट इसे मैक्सिमाइज, इसको कहते हैं आइसो प्रॉफिट लाइन, यानी इसको हमने बाहर की तरफ मूव करना है, तो कॉर्नर पॉइंट जो है उस पे डेट प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज्ड। बहरहाल इसकी जरूरत नहीं है, ये सारे फिजिबल रीजन है। जो लाइन आपको व्हाइट कलर की नजर आ रही है, दीज आर दी फिजिबल रीजन। अब ये देखें, ये जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा या तो कॉर्नर मेथड पे होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉइंट x1 x2 जिस पे होगा, या इस पॉइंट पे होगा, या फिर इस वाले पॉइंट पे होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने सॉल्व कर, ये आपको स्क्रीन पे अब नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, इन चारों पॉइंट पे से किसी एक पॉइंट पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। इसको कहते हैं कॉर्नर पॉइंट मेथड। इनको सर इक्वेशन में पुट करेंगे, जी इनको अब इक्वेशन में पुट करके हाँ जी, देख इसको हम लेंगे। इक्वेशन में पुट करेंगे। द ऑप्टिमल वैल्यू विल ऑलवेज बी एट द कॉर्नर पॉइंट, फाइंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू एट द ईच कॉर्नर पॉइंट एंड चूज द वन विद द हाईएस्ट प्रॉफिट। इसमें यानी अगर हम 0 0 पुट करें तो आपका प्रॉफिट भी दायरा 0 आ जाएगा। ये प्रॉफिट की इक्वेशन में हमने पुट करना है, जो हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन थी जो हमने शुरू में बनाई थी, दैट वाज क्या इक्वेशन थी प्रॉफिट की, ये 7x1 प्लस 5x2। तो इसका कोशिश किया करें टेबल बना लें, इसमें मेरे ख्याल शायद टेबल ही बना हुआ। एनीवे, दूसरा जो पॉइंट है उसमें x1 0 है, x2 80 है, इसको प्रॉफिट में पुट करेंगे तो 400 आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट पे x1 50 है, जो आपका x2 0 है, उसको पुट करेंगे तो 350 आ जाएगा। ये हमने इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है साइमल्टेनियसली, जो पॉइंट्स हमने पहले निकाली है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x1 30 है, x2 40 है, उसमें हम प्रॉफिट की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका 410 आ जाएगा। ये देखें 4 मेथड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा वो पॉइंट 3 पे होगा, दैट विल बी दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि x1 जो प्रोडक्ट है वो हमें 30 क्वांटिटी में बनाने चाहिए, और x2 जो प्रोडक्ट है हमें 40 क्वांटिटी में बनाने चाहिए। तब आपके सारे कॉन्स्टेंट भी फुलफिल हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। नो, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड की, ये क्योंकि हमने बहुत ही सिंपलेस्ट किस्म की एग्जांपल हमने डिस्कस की है,
इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इस पॉइंट के अलावा किसी पॉइंट पे भी आप ऑपरेट करें रियल लाइफ में, यू कैन नॉट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। इसके अलावा किसी पॉइंट पे भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो सकता विद इन दैट गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड। सो दैट इज द फाइनल इसका सॉल्यूशन है कि हम इतने 30 इसके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें x1 के और 40 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें x2 के, देन योर प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड। I think this is the last slide. अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप डिस्कस कर लें। मतलब सर ये हमारे पास जो किसी भी मतलब सिचुएशन में मतलब कि सारी जारी बात है, अगर सिचुएशन चेंज होती रहेगी, हर किस्म के मतलब प्रॉब्लम जो चेंज होती रहेगी, हमेशा हमारे पास लीनियर ही बनेगी। सॉरी, मैं पूछ रहा हूँ कि किसी भी किस्म की सिचुएशन हो हमारे पास इस तरह की बिजनेस में, तो हमेशा हमारे पास लीनियर इक्वेशन ही बनेगी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन भी बन सकती है? नहीं, वो लीनियर इक्वेशन हमने बनानी उसकी लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड हो जाएंगे, उसमें एक सिंप्लेक्स मेथड होता है वो हम यूज करते हैं उसमें, लेकिन हम इतना ज्यादा क्योंकि डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मतलब कि वो भी बन सकती है? जी, वो भी बन सकती हैं, उनको भी हम सोच सकते हैं। सही। जी, और एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, तो क्लियर है सब। फंक्शन को करना होता है, ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब साथ आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही बिल्कुल, आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं? सर आवाज आ रही? जी अब आ रही है, बताएं। अब आ रही है वो। सर मैं कह रहा था कि जो रियल लाइफ के अंदर ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को डिफाइन करना होता है, ये मार्केट ट्रेंड्स को देखकर और क्या जो चीज डिमांड में है उस चीज को देखकर अगर करें तो सारा कुछ सब्जेक्टिव नहीं हो जाता? जी, इसमें थोड़ा सा पार्ट सब्जेक्टिव होता है। जिस तरह हमने प्रॉफिट इसमें कहा था कि आपका इतने % प्रॉफिट होगा, ज़ाहिर वो कैलकुलेशन आपने पहले से की होती है मैनेजर्स ने कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी और उसका बाकी जो कॉस्ट निकाल के आपको प्रॉफिट कितना होगा, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है। प्रैक्टिकली जब हम काम कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर यू हैव टू वर्क आउट, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव चीज़ें भी आ जाती हैं और कुछ सब्जेक्टिव भी, यू हैव टू जज द डिफरेंट थिंग्स। ओके सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? नो सर, ऑल क्लियर। ओके, ठीक है। ये मैंने कल की एक्चुअली बाकी लोगों की क्लास ले दी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी, और उसकी यूट्यूब पे ली थी। तो आप लोगों को मैंने इस पे जूम पे लिया, आप लोगों के लिए मैं जूम पे लाइव क्लास ले लिया करूँगा और प्रॉब्लम जो होंगी वो आप लोगों की डिस्कस करते रहेंगे इस पे। ओके, मुझे स्क्रीन शॉट जो है सेंड कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि लोग हैं क्लास में। सर ये मतलब जूम पे ना अटेंडेंस का वैसे होता है ऑप्शन, मतलब कि वो पता लग जाता है कि कौन कौन से पार्टिसिपेट। मैं एक कोशिश करता हूँ कि अच्छा, मुझे फंक्शन का पता नहीं है, वो मैं फंक्शन चेक कर लूंगा। तो आप वैसे मैं सर आपको, ठीक है मुझे सर, मैं किसी के पास कोई मोबाइल पे ले रहा है तो लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले तो उसके बाद में सेंड कर दे। हाँ जी, मैं सर वो आपको बाद में आपको मैसेज पे शेयर कर दूंगा वो कहाँ से निकलता है। चलें उसका भी वो मैं देख लेता हूँ। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं खुद भी ले लेता हूँ। अभी किसी में मोबाइल है तो वो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो मेरे पास इधर तो सर भेज दी, मैंने लेके भेज दी। चलो अच्छा, ठीक है, सर वो आ गई, मैं आपको चलो ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट वीक में होगी, और लेकिन अगर कल हम क्लास अरेंज कर लेते हैं, पिछले जो लेक्चर्स हैं लेक्चर 1, 2, 3 उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। कल जो है आई थिंक 9 विल बी 9 बजे, ठीक है सुबह की क्लास? कल 9 बजे आप लोगों की क्लास तो नहीं है? कल 9 बजे क्लास होगा सर 9 बजे क्लास है, 9 बजे से पिछली स्लॉट फ्री है। 9 बजे, लेकिन वो फिर मैं रास्ते में होता हूँ ना, 8:30 तक हम पहुँचते हैं। चले, मैं टाइम का बाद में डिसाइड कर लूँगा किसी और टाइम पे फिर डिस्कस करके। सर 9 के बाद वाली भी फ्री है। 9 से 10 फ्री है?